آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ کتنے لوگ آج سبت کے دن میں خوش ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو خدمت میں ہیں؟ بشیر رزاق صاحب، مارٹن صاحب، بشیر محمود صادق صاحب، ایونجلسٹ ہیری صاحب، آپ خدمت میں نہیں ہیں؟ تھوڑا نہیں، آپ کا حال بھی ہے۔ اچھا، آج کا جو کلام ہے وہ میری زندگی کے لیے ہے، وہ خدمت میں جو لوگ ہیں ان کی زندگی کے لیے ہے۔ آج کا کلام جو ہے اس میں جو خدمت میں نہیں ہے، جو کلیسیا میں ہے، وہ آج کے کلام سے بری و ذمہ ہے، وہ آج کے کلام سے سیکھ سکتے ہیں، مگر آج کا کلام ان کے لیے نہیں ہے۔ آج کا کلام میرے لیے ہے اور جو میرے ہم خدمت دوست بھائی بہنیں ہیں ان کے لیے ہے۔ تو آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم بہت بڑی برکت کو رسیو کرنے والے ہیں، خاص کر وہ لوگ جو خدمت میں ہیں، خاص کر وہ لوگ جو خدمت کرنا چاہتے ہیں اور جو خدمت کر رہے ہیں۔ ہلیلویا۔ آج ہم خدا کے بندہ انبیاء اکبر کی زندگی سے سیکھیں گے۔ آج ہم حزقیل نبی کی معرفت سیکھیں گے، جانیں گے کہ حزقیل نبی کون تھے۔ آج ہم ان کی زندگی کے متعلق پڑھیں گے، آج ہم ان کی جو انہوں نے خدا کے کلام کا پرچار کیا اس کے متعلق پڑھیں گے، اور جو خدا نے اس کے منہ میں ڈالا اس کے متعلق پڑھیں گے۔ حزقیل نبی کو کون کون جانتا ہے؟ حزقیل نبی لاوی قبیلے سے تھے۔ حزقیل نبی بہت گہرا اور مضبوط ایمان رکھنے والا نبی تھا۔ حزقیل نبی انبیاء اکبر میں سے تھا۔ دو قسم کے نبی ہیں، انبیاء اکبر اور انبیاء اصغر۔ دو نبی ہوتے ہیں، ایک چھوٹا نبی اور ایک بڑا نبی۔ حزقیل جو تھے یہ انبیاء اکبر تھے، یہ بڑا نبی تھا۔ ہلیلویا۔ آج ہم نے حزقیل نبی کی معرفت جاننا ہے، حزقیل نبی کی حالات زندگی کے بارے میں جاننا ہے، اور حزقیل نبی کی کتاب سے ہی آج ہم نے سیکھنا ہے۔ ہلیلویا۔ حزقیل نبی لاوی قبیلہ سے تھے جو مقدس موسیٰ کا قبیلہ تھا۔ ہلیلویا۔ اگر ہم اس طرح کہیں کہ حزقیل نبی موسیٰ کے قبیلے سے تھے تو یہ بھی ٹھیک بات ہے۔ یہ لاوی کا قبیلہ تھا، اس قبیلے سے مقدس موسیٰ تھے، مقدس ہارون تھے، اور اسی قبیلے سے یہ مقدس حزقیل تھا، اور یہ انبیاء اکبر تھا، یہ بڑا نبی تھا، جیسے یسایہ نبی، ایلیا نبی، دانیل نبی، اسی طرح یہ حزقیل نبی تھا۔ اسے خدا نے ایک بڑی کتاب دی۔ ہلیلویا۔ جیسے مقدس یسایہ نبی کو خدا نے بڑی کتاب دی، اسی طرح حزقیل نبی کو بھی خدا نے بڑی کتاب دی۔ آئے کلام خدا کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس کتاب میں حزقیل نبی کو بلاہٹ کی بارے میں بنی اسرائیل سے بلاہٹ آتی ہے۔ حزقیل نبی کو وہ بنی اسرائیل کی گناہوں کی اور سزا کی اور عذاب کے متعلق بھی بتاتے ہیں۔ ہم کلام خدا کی طرف بڑھتے ہیں اور حزقیل کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 9 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ہلیلویا۔ حزقیل نبی کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 9 آیت کو میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ہاتھ میری طرف بڑھایا ہوا ہے اور اس میں کتاب کا تو مال ہے۔ آمین۔ حزقیل نبی کہتے ہیں میں نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں، ایک ہاتھ میری طرف بڑھایا ہوا ہے، اور اس میں کیا ہے جی؟ وہ مال، اس میں کتاب کا
तुम्हार है। अब तुम्हार क्या होता है? पहले के जमाने में ना वो फोल्ड किया था उसको हमें ना, उसे तुम्हार कहते थे। जो पहले के दौर में जो सहीफा लिखा जाता था, जो कलम बंद चीज की जाती थी, उसे तुम्हार के ऊपर कलम से वो लिखते थे, उसे तुम्हार कहते थे। और मैंने आपको मैसेज स्टार्ट होने से पहले एक बात कही है कि आज का जो कलाम है वो खिदमत गुजारों के लिए है। आज का कलाम मेरी जिंदगी के लिए है। आज का जो इल्हाम खुलने वाला है वो मेरी जिंदगी के लिए है, वो मुबश्शिर इसहाक की जिंदगी के लिए है, वो मार्टिन की जिंदगी के लिए है, वो मुबश्शिर महमूद की जिंदगी के लिए है, वो एवेंजलिस्ट हैरिसन की जिंदगी के लिए है। हालेलुया। आज का कलाम उनके लिए है जो खिदमत में है। हालेलुया। और कोई खिदमत छोटी खिदमत या बड़ी खिदमत नहीं होती, खिदमत सिर्फ खिदमत होती है। और आज का कलाम खिदमत गुजार लोगों के लिए है। कलाम खुदा में लिखा है, और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक हाथ मेरी तरफ बढ़ाया हुआ है और उसमें किताब का तोमार है। हालेलुया। मुकद्दस हिजकिय्येल फरमाते हैं कि एक हाथ मेरी तरफ बढ़ाया हुआ है और उसमें किताब है और किताब का तोमार है। और अगर हम 3 बाब और उसकी 2 आयत का मुतालिया करें तो उसमें लिखा हुआ है, तब मैंने मुंह खोला और उसने वो तिमार मुझे खिलाया। फिर उसने मुझे कहा, ऐ आदमजाद, इस तिमार को जो मैं तुझे देता हूँ खा जा और उससे अपना पेट भर ले। तब मैंने खाया और मेरे मुंह में शहद की मानद मीठा था। हालेलुया। तब खुदावंद ने उसको कहा, तब मैंने अपना मुंह खोला और उसने यानी खुदा ने वो तुम्हार मुझे खिलाया। मेरे अजीजों, जब भी हम खिदमत में होते हैं और अपनी खिदमत का स्टार्ट करते हैं तो हमें किस चीज की जरूरत होती है, खुदा हमें कैसे तैयार करता है। खुदा ने यशुआ को क्या कहा था? खुदा ने यशुआ को जब उसकी खिदमत का स्टार्ट हुआ था तो उसने उसको बात कही थी और बड़ी मशहूर और बहुत बड़ी बात थी। उसने कहा था, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से और तुझे दिन रात उसका ध्यान हो। हालेलुया। इसी तरह अब हिजकिय्येल नबी अपनी खिदमत का स्टार्ट करने लगे हैं और खुदा उसे कहता है, तब मैंने अपना मुंह खोला। तब खुदा ने उसे कहा, तो अपना मुंह खोल और मैं तुझे तुम्हार देता हूं और तू उसको खा ले। फिर उसने मुझसे कहा, ऐ आदमजाद, इस तुम्हार को जो मैं तुझे देता हूं खा जा। अब हमें जो खुदा का कलाम मिला है ये हमारी नीड है। हालेलुया। हमें जो खुदा का कलाम मिला है उसे हमें चबाने की जरूरत है। जब हमारा पेट बड़ा होगा तब हम किसी और को खुराक दे सकते हैं। और जब हम खुद ही भूखे होंगे, जब हमारे पास खुद ही कलाम नहीं होगा, जब हम खुद ही कलाम से खाली होंगे, जब हमारे अंदर कलाम का एक जर्रा भी नहीं होगा तो हम कलाम आगे कैसे दे सकते हैं? हम तो खुद कलाम के प्यासे हैं, हम तो खुद कलाम के भूखे हैं, हमें तो खुद कलाम की तड़प है, हमें तो खुद कलाम की समझ नहीं है। तो मैं कैसे पास्टर बन सकता हूँ? मैं कैसे पास्टर की खिदमत कर सकता हूँ? मैं पास्टर की खिदमत खाली पेट नहीं कर सकता। और मैं ये दुनियावी खाना खाने की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं उस खाने की बात कर रहा हूँ जो खुदा मेरे मुंह में डाल रहा है। खुदा ने कहा, जो तुम्हार मैं तुझे देता हूँ, इस तुम्हार को तू खा ले और अपना पेट भर ले। और जब उसने वो तुम्हार खाया तो उसको वो कैसा लगा? शहद की तरह मीठा लगा। तो जब हम खिदमत में जाएंगे, जब हम अपनी खिदमत का स्टार्ट करेंगे
तो हम जब अपनी खिदमत का स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमने अपने फ्रूटों को चेक करना है, हमने अपने फलों को चेक करना है। क्या आया कि मेरे अंदर कोई फल काम तो नहीं है, आया कि मैं रोजा रखता हूँ, आया कि मैं दुआ करता हूँ, आया कि मेरी दुआ में असर है, आया कि मेरी खुदा सुनता है। सबसे पहले हमें अपनी स्टडी करने की जरूरत है, सबसे पहले हमें अपने लिए खुराक मांगने की जरूरत है, उसके बाद हम कोई भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। और जब हमारा खुद का पेट खाली होगा तो हम कलाम की बिशारत का कलाम नहीं कर सकते, हम खुदा के कलाम को आगे लेकर नहीं जा सकते। जब मुबश्शिर इसहाक साहब के पास ही कुछ नहीं होगा तो वो मुझे क्या देगा। जब उसके पास खुद की नीड कम है, जब उसके पास खुद की खुराक कम है तो वो कलीसिया को क्या खुराक देगा। और जब उसका खुद का पेट कलाम से भरा होगा, जब उसकी रूह कलाम से भरी होगी, जब उसके बदन में खुदा का जलाल जाहिर होता होगा तो फिर वो बखूबी और आसानी से खुदा के कलाम का प्रचार कर सकेगा। इसी तरह यह खुदा हमें एक पैटर्न दे रहा है, खुदा हमें एक तरीका बता रहा है, खुदा हमें एक तरीका बता रहा है। और आज का कलाम जो है ये खिदमत गुजारों के लिए है, जो खिदमत में है। ये कलीसियाई कलाम नहीं है, ये खिदमत गुजारों के लिए कलाम है कि जब वो खिदमत में जाते हैं तो अपने आप को सबसे पहले खाली करें, सबसे पहले अपने आप को खुदा के कलाम से भरें। जब तक उनके पास सुलह के जूते नहीं है, जब उनके पास हथियार नहीं है, जब उनके पास कुव्वत का लिबास नहीं है तो वो क्यों कर जंग लड़ सकते हैं। हालेलुया। वो जंग नहीं लड़ सकते क्योंकि उनके पास वो जंगी हथियार साजो सामान नहीं है, वो जंगी हथियार और साजो सामान से खाली है। और हमें अपनी जिंदगी का मुशाहिदा अच्छी तरीके से करना आता है, हम अपने कॉर्नर में अच्छी तरीके से देख सकते हैं। जब खादम की जिंदगी भेड़िए की तरह होगी तो वो भेड़ों को कभी भी प्रोटेक्शन नहीं दे सकेगा। जब खादम की जिंदगी चरवाहे जैसी होगी, जब उसकी जिंदगी से चरवाहा नजर आता होगा, जब उसकी जिंदगी में चरवाहा होगा तो मेरे अजीजों वो खादम चरवाहे का पहलुकार होगा। वो उस नीड को उस तरीके से लेगा जिस तरीके से चरवाहा उसको बताता होगा, जिस तरीके से उस्ताद उसको सिखाता होगा। और जब हम खुद खाली हैं, जब हमारी जिंदगी में खुद का कलाम नहीं है तो हम कभी भी खुदा के कलाम की तरफ या खुदा के कलाम के बारे में किसी को ना बताएं। आज मेरे जीजो लोग कहते हैं कि थल्लो एक पुटो तो थल्लो पादरी निकल रहा है। मैं आपको बिलीव से कह सकता हूँ, यकीन से कह सकता हूँ, मुझे पादरी नजर नहीं आते। मैं आज हम जिस इलाके में गए थे, आज हमने जिस इलाके को विजिट किया था वो इलाका खुदा के कलाम का प्यासा और खुदा के कलाम का भूखा था। पता नहीं पादरी कहाँ है और कहाँ खिदमत कर रहे हैं। जो एट फुटो थल्लो निकल रहा है वो पादरी मिन्नू नजर नहीं आया। आज भी फसल बहुत है, आज भी इतनी फसल है कि मजदूर थोड़े हैं। खुदा के कलाम के मुताबिक आज भी मजदूर थोड़े हैं। अगर हम एक इलाका या दो इलाका या तीन इलाकों को विजिट कर लेते हैं तो हमने कोई तीर नहीं मारा। अगर हम इस्लामिक कॉलोनी को विजिट कर लेते हैं तो हमने कोई तीर नहीं मारा। हमें खुदा के कलाम को उस तरह करना चाहिए जिस तरह हमें हमारे यीशु मसीह ने बताया है, जिस तरह हमें हमारे यीशु मसीह ने नीड दी है, जिस तरह हमें हमारे यीशु ने सिखाया है कि जाओ और सब कौमों में खुदा बाप और बेटे और रूह कुदूस की बिशारत दो, उसके कलाम की खुशखबरी दो। हालेलुया। तो हम तो खुद खाली पेट लिए हुए हैं, हम तो खुद खुदा के कलाम से खाली हैं। हम किस तरीके से जाएंगे जब तक हम उन तमारों को चबाएंगे नहीं, जब तक हम उन तमारों को खाएंगे नहीं, हिजकिय्याह की तरह जब तक हमें वो शहद की तरह मीठे नहीं लगेंगे, हम खुदा का कलाम आगे पेश नहीं कर सकते। मार्टिन भाई, उस वक्त आपकी जिंदगी में आप किसी को गाइड नहीं कर सकते जब आपको खुदा ने रूह कुदूस से नहीं भरा। आप खाली पेट, खाली रूह, खाली बदन किसी को समझाने के कायल नहीं है। इसी तरह जितने भी खिदमत गुजार हैं वो खाली पेट बराए मेहरबानी खिदमत ना करें। और खिदमत के फ्राइज, खिदमत के तरीका सलीका आप सबों को आता है, किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। खिदमत में रोजा है, रियाजत है, दुआ है, पशेमानी है, झुकना है
और खुदा के आगे पशेमान होना है। ये सारे खिदमत के प्रोसेस हैं। जब हम अपने फलों को देखेंगे, जब हमारी जिंदगी खुद की फ्रूटफुली होगी, जब हम खुद खुदा के रूह से बनेंगे, तो फिर हम खुदा का कलाम पढ़ेंगे। अगर हम तीसरे बाब की एक आयत का मुताला करें, फिर उसने मुझे कहा, ऐ आदम जात, जो कुछ तूने पाया सो खा, इस तोमार को निगल जा और जाकर इस्राएल के खानदान से कलाम कर। हालेलुया। हालेलुया। लोगों किस बात की समझ आई है? फिर उसने मुझसे कहा, ऐ आदम जात, जो कुछ तूने पाया सो खा और इस कुमार को निगल जा और जाकर इस्राएल के खानदान से कलाम कर। हमें उस कलाम को निगलने की जरूरत है, हमें उस कलाम को खाने की जरूरत है जो खुदा हमें देता है। और मेरे अजीजों, खुदा का रेवलेशन, खुदा का मुकाशफा, खुदा की अनाउंटिंग, खुदा की बुजुर्गी हर किसी पर नहीं। वो के सारे खादम हैं, मगर सारे खुदा के जलाल से भरे हुए नहीं हैं। बहुत सारे हैं जो अभी भी खुदा के जलाल से महरूम हैं। उनके आगे टाइटल तो है, उन्होंने टाइटल तो लगवा लिया है, मगर उनकी जिंदगी में खुदा का कुछ काम नहीं कर रहा। और जब तक आपको कुव्वत का लिबास ना मिले, आप अपनी जगह पर खड़े रहें। आप इस्राएल में या अदर कलीसिया में खुदा का कलाम की मुनादी ना करें, क्योंकि खुदा का कलाम हमें सख्ती से मना करता है। खुदा का कलाम खादमों को सख्ती से मना करता है। और जो मुबश्शिर होता है, ये कोई छोटा खादम नहीं होता। मुबश्शिर पता किसे कहते हैं? जो अंजीर का मुबश्शिर, जो कलाम का मुबश्शिर हो, जिसके अंदर खुदा का कलाम हो, उसे मुबश्शिर कहते हैं। और एवेंजलिस्ट उसे कहते हैं जो डोर टू डोर जाए, सिटी टू सिटी जाए, कंट्री टू कंट्री जाए और खुदा का प्रचार करे, उसे एवेंजलिस्ट कहते हैं। ये ओहदे लिखने में और सुनने में बड़े सिंपल और बड़े सादा लगते हैं, मगर जब हम इनकी ऊंचाई और गहराई को देखते हैं और जब हम खुदा के बंदा हिजकिय्येल को पढ़ते हैं, तो खुदा के बंदा को खुदा ने कहा है कि तू जब तक इसे निगल नहीं जाता, जब तक इस नीड को खा नहीं जाता, तू इस्राएल के खानदानों में नहीं जा सकता। और जब तुझे निकल जाएगा, जब तुझे खा जाएगा, फिर तू जाना और इस्राएल के खानदानों में जाकर मेरे कलाम की मनादी करना। हमें जो खिदमत में है, हम जो पास्टर्स हैं, जो मुबश्शिर हैं, जो डीकन हैं, जो एल्डर हैं, जो एवेंजलिस्ट हैं, हमें खुदा को और खुदा के कलाम को अपने अंदर लेने की जरूरत है। तो जब तक हमारे अंदर खुदा का कलाम नहीं है, खुदा की अनाउंसिंग और बुजुर्गी नहीं है, उसका खौफ नहीं है, उसके लिए हम टाइम नहीं निकाल सकते, उस वक्त तक हम रूहें नहीं बचा सकते। क्योंकि खुदावंद का कलाम, अगर हम नए अहद को पढ़े तो खुदावंद का कलाम हमें यही सिखाता है। खुदावंद का कलाम हमें यही कहता है, अगर तुम भूखे हो तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें खाना दूंगा। और वो खाना फिर रूहानी खाने की बात हो रही है। अगर वो प्यासा है तो मेरे पास आए, मैं उसे पीने को पानी दूंगा। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, ये सारा कुछ यीशु मसीह देता है, मगर हमने उसे रिसीव करना है। और जो रिसीव नहीं करते, बराए मेहरबानी वो किसी के मोटिवेशन स्पीकर ना बने। जब तक आपके पास खुद के पास वो लिबास नहीं है, जब तक आप खुद के लिबास से मामूर नहीं हो जाते, जब तक आप सुलह के जूते नहीं पहन लेते, उस वक्त तक राय मेहरबानी अपने शिगिर्द ना बनाए, ना किसी को मोटिवेट करे, ना किसी को तालीम दे। आपकी तालीम से कोई गलत राह इख्तियार कर सकता है। आपको खुदा के कलाम को निगलना पड़ेगा, आपको खुदा के कलाम को समझना पड़ेगा, आपको तुम्हार खाना पड़ेगा जो खुदा अपने इल्हाम से लिखता है। जिस तरह हिजकिय्याह ने वो कलाम वो तुम्हार खाया, आज हम जो खिदमत में हैं, हमें भी खुदा के कलाम को चबाने की जरूरत है। हमें भी यशवा की तरह हुक्म दिया गया है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, तो तुझे दिन रात इसका ध्यान रहे। ये बात खादमों के लिए है, क्योंकि यशवा खिदमत में था, यशवा अपनी खिदमत का स्टार्ट करने लगा था। इसी तरह हिजकिय्याह अपनी खिदमत का स्टार्ट करने लगा है, और उसने देखा है कि एक हाथ उसकी तरफ बढ़ा है और उस हाथ में किताब है और किताब का तुम्हार है।
और वो तमार उसे खाने को दिया गया है, और वो जब उस तमार को खाता है और वो उस तमार से अपनी जिंदगी को फ्रूटफुली करता है, अपनी जिंदगी को मीठा करता है। उसे खुदा का कलाम शहद के टप्पों से भी ज्यादा मीठा लगता है। इस तरह जबूर नवीस लिखते हैं कि तेरा कलाम शहद के टप्पों से भी ज्यादा मीठा और शीरीन है। जब तक हम खुदा के कलाम को टेस्ट नहीं कर लेते, जब तक हम खुदा के कलाम को चख नहीं लेते, जब तक हम खुदा के कलाम को समझ नहीं लेते, जब तक हम खुदा के कलाम को ले नहीं लेते, उस वक्त बराए मेहरबानी आप किसी को तालीम ना दें, किसी के मोटिवेशन स्पीकर ना बने, वरना आप और आपकी वजह से कोई रूह बरगश्ता हो सकती है। तो बराए मेहरबानी जो खिदमत में है वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त खुदावन में गुजारें, ताकि उस कलाम को लें, उस कलाम की नीड को लें। जिस तरह मुकद्दस हिजकिय्याह को खुदा ने हुक्म दिया था कि इस कलाम को निगल जा, अपने अंदर निगल जा। और निगलते कौन है? इस कलाम को चबा भी ना बल्कि निगल जा, क्योंकि वो साबत ही निगल जा तू। तो मेरे अजीजों, हमें ये छोटे छोटे पैटर्न, छोटे छोटे नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े पैटर्न हमें समझने की जरूरत है, हमें कलाम को समझने की जरूरत है। जब तक हम कलाम को समझते नहीं, जब तक हमारे अंदर कलाम की तड़प नहीं होती, हम कलाम को समझ भी नहीं सकते। तो आज का जो कलाम है वो खिदमत गुजार लोगों के लिए था, जो खिदमत में है। तो बराए मेहरबानी खुदा के कलाम को अपने अंदर नीड की तरह लें, खुदा के कलाम को इस तरह खाएं जिस तरह 3 टाइम खाना खाते हैं, उस तरह खुदा के कलाम को लें, और उसी भूख और उसी तड़प के साथ खुदा के कलाम को लें। जिस कलाम से, जिस तरह से आप दुनियावी रोटी खाते हैं, उसी तरह से आप ये रोटी खाएं, और खुदावन आपको ब्लेस्ड करेगा। और उसके बाद आप निकलें और कौमों और कबीलों और उम्मतों में जाएं और खुदा के कलाम की बिशारत दें। अगर आपके पास खुदा का कलाम नहीं है, अगर आपके पास खुदा का मतन नहीं है, अगर आप खुदा के कलाम से वाकिफ नहीं है, तो बराए मेहरबानी सबसे पहले खुदा को अपना उस्ताद बनाएं। उसके बाद इसको कलाम का पता है, इसको खुदा के इल्हाम का पता है, उसे अपना उस्ताद बनाएं। उसके बाद अपनी खिदमत का आगाज करें। कोई भी रूह आपकी वजह से रंजीदा ना हो, आपकी वजह से ठोकर का बायस ना हो। तो मेरे जीजों, आज का कलाम जो हमें तकवीयत बख्शता है, ये कलाम सबके लिए था, और स्पेशल ये कलाम खिदमत गुजार लोगों के लिए था जो खिदमत में है। वो इस कलाम के वसीले से बरकत को रिसीव करें, और इस कलाम के वसीले से अपनी ज़िंदगी, अगर उनकी ज़िंदगी वो खिदमत में भी हैं और उनकी ज़िंदगी दुआया नहीं है, तो आज के बाद अपनी ज़िंदगी को दुआया करें और खुदा के साथ वक्त गुजारें। खुदा हम इस कलाम की